Yaraba. Good evening, everyone. सभी को स्वागत करता हूँ. Welcome everyone in the today's very special session. Today there will be no practice, and all the beloved players are requested to kindly watch together. And there is a very interesting and very important session regarding the sports injuries. First of all, I would like to welcome Dr. Sayani RC Infal, Sir Francis Marwinji, and all the dignitaries from the Wushu Astronomy India, all the respected state coaches and state secretaries. I welcome everyone. And first of all, to start the session of the sports science regarding the sports injuries today, I would like to welcome our respected chief coach of the Indian national Wushu team, our respected sir, and the respected program director of the ensuing online e-Pathshala Wushu training program. I welcome Kuldeep Handu sir for introducing the session and welcome the speaker. Welcome, sir. Thank you, Prem. Good afternoon to everybody. Good afternoon. Dr. Sahab, namaskar, sir. Namaskar. Today we have a great guest with us. He is a renowned doctor in India, sir, Dr. Retaish. I welcome on behalf of the Wushu Association of India and Sports Authority of India, Dr. Retaish Kumar. He is an MBBS PG in sports medicine and trained in ultrasound guided PRP shots from USA. He has treated so many Indian athletes, elite athletes of India. So he is very skillful in this sports medicine specialist. So I request Dr. Retaish to वो अपने थोड़ा सा आज बच्चों को थोड़ा सा स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में बता दे क्योंकि Wushu is a prone injury prone game and we are suffering मतलब so many players of Indian athletes are prone of this injuries. So उनको थोड़ा सा बताए गाइड कीजिए सर कि कैसे कैसे हम इंजरीज के साथ अपने गेम को भी चला दें सर क्योंकि कॉम्पैक्ट गेम. Thank you very much sir. Welcome sir. Welcome Dr. Retaish sir. Thank you, Kuldeep Handuji. Thank you, all the seniors, directors, and all of the members and the students also of this organization and those who are right now on with us in this online class. Thank you, Kuldeep Handu. A special thanks to you and a warm regards. So, सबसे पहले मैं I just wanted to join and know this thing कि are you comfortable with me in Hindi or English? मैं बीच-बीच में थोड़ा सा इसी तरह से चलना चाहता हूँ. You just let me know. Sir, I think both the languages better है सर कि ज़्यादा हिंदी क्योंकि हिंदी भी और इंग्लिश भी बहुत चलेगा सर. Thank you very much. Okay. So, am I audible to all? Yes, sir. Yes. Okay, fine. So let me start quickly. That today's topic is what are the common sports injuries. So let me give you a brief introduction about myself quickly in a minute. And then I'll let you know about the common injuries and then a little bit history and a little bit daily day-to-day routine forms and then their prevention, how we can prevent ourselves. My name is Dr. Retaish. I'm MBBS and postgraduate in sports medicine from NIS Patiala. There I spent maximum time with all disciplines and my more inclination was with the Wushu at the time even. And I used to play a little bit along with your all seniors and all great coaches of the India. And Kuldeep Handu was also at that time participating in international. He was a gem of our Indian team at the time. And right now he's also doing laurels to the India and laurels to the Wushu. Hats off to this gentleman, number one. So without wasting much time in the introduction, let's start. What are the common sports injuries nowadays? And moreover, since we are into the martial art, I can little bit understand the Wushu is the part of two things. It's a Sanso and a Talo. So हम Sanso और Talo दोनों को इसमें incorporate करके चलेंगे और overall martial arts को भी हम consider करके चलेंगे. वैसे हमारे kick, punch, throw तीनों चीजें ही इसमें आ जाती हैं. So
we can incorporate all the three things into it. So let's start. First of all, any kind of a combat sport or martial arts sports, it's a wide array of injuries, and injuries type depend upon the particular form of the martial art. Say हम वुशु को ही लेकर के चलते हैं, तो it's a combat sport. इसमें टेक्निक, रूल, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फैक्टर्स और इंजरीज रेट क्या होते हैं. सबसे पहले ही होता है, जैसे कॉमनली हम कहते हैं कि कंकशन होगी. व्हाट इज कंकशन? मैं आपको हर एक चीज को समझाना भी चाहूंगा, और अगर आपको मेरी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो टफ लग रही हो या जो आपको नहीं समझ आ रही हो, यू कैन आस्क मी इन बिटवीन. आई कैन स्टॉप एंड आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन. सो कॉमन सिम्टम ऑफ द कंकशन इंक्लूड dizziness, nausea, balance problem, difficulty with the concentration and memory problem. जैसे सपोज हम कहते हैं नॉकआउट पंच मारा, उसको बहुत जोर से लग गया और बिल्कुल नॉकआउट पॉइंट पे लगा, तो उसको कंकशन हो जाती है, और जिसके कारण उसको ये सारे सिम्टम आते हैं. दूसरा, अगर हम कोई भी गेम खेल रहे हैं तो उसमें हेड, आई, ईयर, नोज के अराउंड कोई भी इंजरी होती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ग्रैपलिंग, स्ट्राइकिंग करते हैं जोर से, can result in minor injury, can result in bruise, laceration. bruise होता है जैसे नील पड़ जाना किसी चीज का, laceration होता है जैसे स्किन का फट जाना उस जगह से, और कोई मोर सीरियस इंजरीज भी हो सकती हैं, जस्ट लाइक फ्रैक्चर हो गया, नोज ब्लीडिंग हो गया, स्कल का फ्रैक्चर हो गया, इस तरह से. और माउथ के अराउंड भी हमें जिस तरह से पंचेज या किक्स या कुछ भी ऐसी भारी चीजें पड़ती है, तो हमारे दांत, टीथ टूटने का डर या आई का इंजरी, ट्रॉमा होने का डर रहता है. इस तरह से कुछ मेजर होती हैं, कुछ माइनर होती हैं. हम सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो इसी तरह हम हेड, आई, ईयर, नोज की बात करें तो नेक के पास भी बहुत सारी हमें कॉमन इंजरीज होती हैं. माइनर भी होती हैं, मेजर भी होती हैं, जस्ट लाइक अब्रेजन होगी, कॉमन इंजरी होगी. एंड जैसे हम थ्रो कर रहे हैं उस समय में नेक के पास इंजरी हो सकती है, पंच के कारण टाइम भी इंजरीज हो सकती हैं. सो चोकिंग एट द टाइम, थ्रोइंग, इस तरह से. सो एक्सट्रीमिटीज जो हमारे बाकी पार्ट हैं बॉडी के, उसमें क्या इंजरीज हो सकती हैं. इंजरीज टू द एक्सट्रीमिटी इंक्लूड कट, ब्रूज, स्प्रेन, स्ट्रेन. किसी चीज का कट लग जाना, किसी चीज के नीचे ब्लड इकट्ठा हो जाना, प्रेशर से स्प्रेन हो जाना, फ्रैक्चर हो जाना, जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाना. इस तरह की काफी इंजरीज एक्सट्रीमिटी में होती हैं. इसी तरह हमारी स्किन में भी काफी तरह की इंजरीज हो सकती हैं ड्यूरिंग द गेम, और which are more prone and common to the athletes. जैसे suppose athletes participating in combat sports such as wrestling, martial art can prone to develop certain skin infections भी हो सकते हैं हमें उस समय. It can be evaluated by the concerned physician, by the concerned dermatologist also. But जो हमारे कंसर्न में होती हैं वो तीन मेन पार्ट इंजरीज में आता है. नंबर 1 acute, number 2 overuse, number 3 chronic. First of all, I'll explain you what is acute injury. Usually acute injury results of a single traumatic event within the last 5 days. मतलब 5 दिन के अंदर अंदर जो भी आपको ट्रॉमा हुआ है, जोरदार चोट लगी है, उसको हम कहते हैं acute injury. उसका एग्जाम्पल होता है फ्रैक्चर हो जाए, कोई स्प्रेन हो जाए, किसी शोल्डर या किसी जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाए, या कोई मसल में एक सीवियर सा स्ट्रेन हो जाए, उसको हम कहते हैं एक्यूट इंजरी. इसी तरह सेकंड पार्ट होता है ओवर यूजेज. It occurs over time and making them challenging to diagnose and treat. For example, जैसे स्विमर होता है या जिसको बार बार शोल्डर को हिलाना पड़ता है, तो रनर होता है, जंपर होता है, उसको नी को बार बार इंजरी हो जाए. ओवर यूजेज, बार बार रेपिटेटिव मल्टीपल टाइम्स जो भी होता जाएगा, उसको हम कहते हैं ओवर यूजेज ऑफ द इंजरीज. वो एचएलईएस टेंडनाइटिस की भी हो सकती है, शिन स्प्लिंट की भी हो सकती है, शोल्डर की भी हो सकती है. थर्ड इज क्रॉनिक, यूजुअली विच लास्ट एटलीस्ट 3 months और मोर. जो इंजरी 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा रहती है, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक इंजरी. ये इनके मेन रीजन क्या होते हैं इन इंजरीज के होने के? जैसे कि सपोज इनप्रॉपर ट्रेनिंग,
improper technique, incorrect equipments हम यूज कर लें जो कि हमें प्रॉपरली फिट ना हो और हमारी स्पोर्ट्स या हमारे साइज के अकॉर्डिंग ना हो, या फिर उनकी एनाटॉमिक और बायोमैकेनिक इश्यू हो। जैसे सपोज हमने कुछ किसी चीज को पहनना है, हमारा हेड गियर है या हमारे ग्लव्स हैं वो हमारे साइज के ही नहीं है, तो हमें इंजरी होगी। अगर हमने शिन गार्ड पहना है, वो ओवर साइज का है, मेरी हाइट कम है, तो हमें भी इंजरी होने का चांस रहता है और प्रोटेक्शन कम मिलती है। इस तरह से एक इन फील्ड ऑफ फील्ड कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स जो होते हैं इनका ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण हमें इंजरीज हो सकती हैं। Overuse or overtraining injuries are major problem from the adolescent athlete. Both can occur in the student participating in sports around the year, and especially याद रहे overuse injury maximum हमें off season में होती है, जिस समय हम प्रैक्टिस में फिटनेस में नहीं होते हैं और हमें प्रैक्टिस ऑफ एंड ऑन या ऑन डे टू डे बेसिस पे नहीं करनी होती है, हम थोड़ा इतना फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उस समय हमें ये ऑफ सीजन इंजरी होती है जो कि ओवर यूज में चली जाती है। और इसी में क्या होता है, पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर एंड व्हाइल एट रेस्ट, और जिसके कारण हमारा गेम को खेलने का एंथुजियाज्म उसमें भी कमी हो जाती है, और मतलब हमारे जो परफॉर्मेंस का ग्रेड होता है वो डिप हो जाता है ओवरऑल। इसके लिए एंड देन अदर इंजरीज, हमने 3 अभी तक कवर करी हैं। अब अदर इंजरी होती है, स्प्रेन होता है, स्ट्रेन होता है, कंट्यूजन होता है, टियर होता है, एंड वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज स्प्रेन वेरी क्विकली। Sprain results from overstretching or over tearing of the joint or capsule or ligament. किसी भी जॉइंट का जो कैप्सूल है, लिगामेंट है, उसकी ओवरस्ट्रेचिंग के कारण स्प्रेन हो जाएगा। जस्ट लाइक ग्राइंड स्प्रेन, हैमस्ट्रिंग स्प्रेन, क्वाड्रिसेप स्प्रेन, शिन स्प्रेन के आसपास स्प्रेन, काफ में स्प्रेन। इसी तरह स्ट्रेन और स्ट्रेन both are two different things. Now I'm going to explain you strain. Strain is also referred to as pulls, such as overstretching, overtraining of the muscle or the tendon. वो हमने कहा कि जॉइंट, कैप्सूल और लिगामेंट के ऊपर ओवरस्ट्रेचिंग हो जाए तो स्प्रेन हुआ। मसल और टेंडन की ओवरटीयरिंग या ओवरस्ट्रेचिंग के कारण स्ट्रेन होता है। व्हाट इज कंट्यूजन? कंट्यूजन is an injury to the tissue or a bone in which the capillaries are broken and local bleeding occur. जैसे आपको ब्रूज दिख जाता है स्किन के नीचे ब्रूज क्यों दिखता है? कि जो फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं वो टियर हो जाती हैं ड्यू टू कंट्यूजन। बाहर से आपने पंच मारा, मैक्सिलर फेस की बोन के ऊपर आपने पंच मारा, और पंच के कारण जो इसके नीचे की फाइन आर्टरीज हैं, फाइन ट्रिब्यूटरीज हैं, वो टियर हो जाती है, वहां से ब्लीड हो जाता है, और स्किन ऊपर से फटी नहीं होती है और वो ब्लू दिखना शुरू हो जाता है ब्रूज की फॉर्म में। उसको हम कंट्यूजन भी कहते हैं। फिर उससे एक नेक्स्ट होती है, उसको हम कहते हैं टियर। टियर मीन्स की टोटल उसका अलग हो जाना, स्किन का फट जाना और पूरा बोन दिखना या नीचे मसल दिखना हमारी आईज से, थ्रू आईज से, उसको हम कहते हैं कंप्लीट टियर। इसी तरह काफी सारी इंजरीज होती है, जैसे ग्राइन पुल, हैमस्ट्रिंग, नी इंजरी, एसीएल टियर, लिगामेंट टियर, एंकल स्प्रेन, स्प्रेन इंजरीज, शिन स्प्रेन, टेनिस एल्बो, रोटेटर कफ इंजरीज। हम एक एक करके हम इन सबको एक्सप्लेन करेंगे, सबको पढ़ेंगे, लेकिन आज मेन टॉपिक मैंने रखा है नी एनाटॉमी, फंक्शन एंड कॉमन प्रॉब्लम्स। नी को, एक ही जॉइंट को अच्छी तरह से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी सारी मूवमेंट्स, उसके सारे फंक्शंस, उसमें क्या क्या मसल, लिगामेंट होते हैं, हमारी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, हमारी अदर स्पोर्ट्स में किस तरह से वो इंजरीज हो जाती हैं, व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स, और एडिशनली उनकी प्रिवेंशन क्या है, प्रिकॉशन क्या है, और हम उनको ट्रीटमेंट किस तरह से दे सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट the common knee anatomy, function, and the common problems one by one. First of all, the knee joint is a synovial joint which connects the femur, जो हमारी थाई की बोन होती है, the longest bone in the body, to the tibia, जो कि हमारी shin bone होती है, and two main joints in the knee, the tibiofemoral and the tibia meet the femur. जहाँ पे टिबिया और फिबुला
मीट करती हैं उसको हम कहते हैं टिबियोफिबुलर, जो कि हमारी शिन बोन की जो दो बोन होती है, एक होती है टिबिया, एक होती है फिबुला, उसको हम कहते हैं टिबियोफिबुलर। और जो फीमर ऊपर से आ रही है, जब इन दोनों के साथ यूनाइट करती है तो वो नी जॉइंट बनता है अलॉन्ग विद द पेटला। द पेशेंट ऑफ द नी, जब जब सपोज हमारे कोई भी हमारी कॉम्बैट गेम चल रही है, हमारी नी में किसी भी प्रकार की कोई इंजरी हो गई है, तो वो इंजरीज किस किस तरह से होती है उसकी पोजीशंस पहले हम देखेंगे और उसके बाद हम इंजरीज पे आएंगे। एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, abduction, adduction, proximal, डिस्टल, इंफीरियर, सुपीरियर, ये सारी मूवमेंट, सारी पोजीशंस होती हैं। इन सबको एक एक करके हम समझते हैं। व्हाट इज एंटीरियर? एंटीरियर वो चीज होती है which is facing the knee from the front. Posterior, posterior वो चीज होती है which is facing the knee from the back side, means घुटने के back side. Medial, medial the side of the knee which is close to the other knee, means दोनों घुटनों के बीच में जो पोर्शन है वो मीडियल है, मीडियल पार्ट अंदर की तरफ है। लेटरल, लेटरल साइड जो बाहर की साइड घुटने का पोर्शन है उसको हम लेटरल कहते हैं। एब्डक्शन, मूव अवे फ्रॉम द बॉडी, जैसे हम लेग को साइड की तरफ रेज कर दें तो हम एब्डक्शन कर रहे हैं, मींस द लिम्ब इज गोइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, एब्डक्शन। इसी तरह अडक्शन, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द बॉडी, जब हम इनवर्ड्स की तरफ, बॉडी की ही तरफ वापस आएंगे या आगे चले जाएंगे अंदर की तरफ, उसको हम कहेंगे अडक्शन। डिस्टल, लोकेटेड फार्दर, जो कि दूर लोकेट होता है फ्रॉम द पॉइंट। इंफीरियर, नीचे, सुपीरियर, ऊपर। अब इसी तरह मैं इन टर्मिनोलॉजीज का यूज करूंगा आगे फर्दर पढ़ाने में ताकि आपको आसानी रहे समझने में, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। हमारे पास नी में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? दिस इज द बेसिक एनाटॉमी ऑफ द नी। नंबर 1 फीमर, नंबर 2 फीमर जो कि थाई बोन, टिबिया, फिबुला जिसको हम शिन बोन कहते हैं लेग में, और पेटिला। इन 3-4 बोन्स के साथ मिलके बनता है नी जॉइंट। नी जॉइंट के अंदर के स्ट्रक्चर, फीमर जो होती है उसके 2 कंडाइल होते हैं, मीडियल, लेटरल। इसी तरह टिबिया जो शिन बोन है उसके भी 2 कंडाइल होते हैं, मीडियल एंड लेटरल। इनके साथ अलग अलग तरह के लिगामेंट और मसल्स अटैच होते हैं। हम एक एक करके उनका आगे पूरा विस्तार करेंगे और आपको पूरा समझाएंगे। The ligaments in the knee, main. The ligaments are strong, tough bands which are not particularly flexible, and function of the ligament is to attach the bone to the bone. एक bone को दूसरी bone के साथ जोड़ने में जो एक thick, tough band attach होता है उसको हम ligament कहते हैं। जैसे कि medial collateral ligament जो कि medial तरफ अंदर की तरफ होता है हमारे नी के, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट जो कि बाहर की तरफ होता है। अभी मैंने आपको मीडियल, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर सब समझाया है। इसी तरह मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जिनके की हम शॉर्ट फॉर्म के नाम भी होते हैं वो लेते हैं, जैसे एमसीएल, एलसीएल, एसीएल, पीसीएल, इस तरह से भी इनके नाम लेते हैं। अब ये कहाँ कहाँ अटैच होते हैं मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। Medial collateral ligament attaches the medial side of the femur to the medial side of the tibia and limits sideway motion of your knee. Got it? इसी तरह lateral collateral ligament होता है which attaches the lateral side of the femur to the lateral side of the fibula and also limits sideway motion of your knee. Third, anterior cruciate ligament. It attaches the tibia and the femur. It is located deep inside the knee and in front of the posterior cruciate ligament. It mainly serves the limit forward motion of the tibial relative to the femur. जिस तरह से हम स्ट्रेट थ्रस्ट मारते हैं हमारी इसी गेम में, वुशु में, स्ट्रेट किक जिसको हम कहते हैं, या स्लैप किक या मौसी गिरी, जो भी हम कहते हैं,
उसमें इस एसीएल लिगामेंट का बहुत बहुत ही मेन रोल होता है। जिस तरह से हम नी को उठाते हैं, दूसरे नी पे वेट आता है, बैलेंस करते हुए हम लेग को टर्न करते हैं और उसके बाद उसको हिट करते हैं हम अपने ओपोनेंट को, तो एसीएल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट उस समय बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. It is just like ACL. It attaches the tibia and the femur. It lies behind the anterior cruciate ligament. It mainly limits backward motion. अगर सपोज हमने पैक्टन साइड किक करनी है या हमने राउंड हॉर्स मारनी है, तो उस समय पीसीएल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट. सिमिलरली ACL PCL की लिमिट्स बैकवर्ड मोशन की होती है, and the ACL also limits the rotation sideways, and the PCL can turn with a forceful landing on a shin. अगर हम suppose back turn side kick करते हुए land करते हैं, तो उस समय PCL पे बहुत stress होता है, may be the chances of a PCL tear. And the joint capsule. Next is the joint capsule. A thick fibrous structure that wraps around the knee joint. Inside the capsule is a synovial membrane, which is lined by a synovium, a soft tissue structure that secretes synovial fluid and lubricate the knee. एक ऐसा pouch जिसके अंदर ये पूरा ये ऐसा pouch जिसके अंदर knee attach होता है, और हम उसको lubricate भी करता है knee joint को, उसको support भी करता है, उसको hold करके रखता है और उसको protect रखता है. इस capsule, जिस तरह से कैप्सूल के अंदर ड्रग होती है, इसी तरह कैप्सूल के अंदर हमारा ये नी जॉइंट का सपोर्ट होता है. काइंडली अटैच इट, जस्ट होल्ड ऑन. Then there are many type of cartilage in the body, but mainly in the knee there are medial menisci and the lateral menisci, two type of the cartilages in the knee. Main type cartilage in the body is slightly different, but this is fibrocartilage. The meniscal is the fibrocartilage, and it mostly the end of the femur and the tibia and the undersurface of the patella are covered in the hyaline cartilage, and the hyaline is also known as articular margin, जो कि फीमर का और टिबिया का होता है. फीमर का मार्जिन जो कि टिबिया के ऊपर होता है, एंड दिस इज बोथ फ्लेक्सिबल एंड स्लिपरी. ये दोनों टिबिया के अपर एंड और फीमर के लोअर एंड के बीच के मार्जिन्स जो होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं, स्लिपरी होते हैं, ये वहां पे फॉर्म होता है और बहुत फ्लेक्सिबल होता है. द फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प्स टू एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर. जैसे सपोज हम सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं और हम जंप लेते हैं, एक किक के ऊपर वेट डालते हैं, एक लेग के ऊपर दूसरे लेग से किक करते हैं, तो वो सारा वेट, उस समय सारा शॉक एक नी की कार्टिलेज के ऊपर होता है. दीज आर शॉक एब्जॉर्बिंग टू द लिम्ब और टू द जॉइंट. इसी तरह हमारे दो मेनिस्काई होते हैं, मीडियल मेनिस्काई एंड द लेटरल मेनिस्काई. What is medial menisci? The medial menisci is a crescent-shaped structure that exists on the side of the knee, and it is made up of fibrocartilage. It acts like a shock absorber in the knee and adds stability to the knee. It attaches to the tibia as well as to the joint capsule of the knee. वो joint capsule, वो joint की cap, जो मैंने अभी बताई आपको, lubricate भी रखती है नी को और नी को थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रखती है और अटैच होती है पूरी तरह से नी के साथ. उसी के बीच में ये फाइब्रोकार्टिलेज होती है, जिसको हम कहते हैं मीडियल मेनिस्काई, जो कि मीडियल साइड होती है, मीडियल कॉन्डाइल पे होती है. इसी तरह लेटरल साइड पे, लेटरल कॉन्डाइल पे लेटरल मेनिस्कस होता है. लेटरल मेनिस्कस सिट्स ऑन द लेटरल tibial plateau, and it is a crescent-shaped structure, and this is also made up of the fibrocartilage. It acts as a shock absorber in the knee and adds stability to the joint in the lateral part. It attaches to the joint
capsule of the knee as well. It is somewhat more mobile than the medial, क्योंकि हमें lateral side ज़्यादा functioning की जरूरत पड़ती है, इसलिए nature ने हमें इसे इस side ज़्यादा mobile रखा है. In a healthy knee, the rubbery menisci act as a shock absorber. They both sit on the top of the tibia and help to spread the load of the femur over a large surface area on the tibia. If the menisci are removed, the underlying articular cartilage sees a heavier load and it's a risk of wearing down faster and develop osteoarthritis. जैसे कि सपोज हमारे ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं, वो कहते हैं जी घुटने से हम चल नहीं पा रहे, नहीं हमसे काम हो पा रहा, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है. वो यही कार्टिलेज खत्म हो जाती है उनकी, जिसके कारण वो चल नहीं पाते. और जो प्लेयर्स हैं वो बार बार किकिंग की प्रैक्टिस करते हैं. many times they used to kick thousand billions time. They have to practice for the kicking, punching and blocking and then throwing. उस टाइम ये सारे नीज के जो कार्टिलेज हैं इनके ऊपर फ्रिक्शन होती जाती है बार बार, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफी डैमेज होता रहता है. बिकॉज मैनी ए टाइम आप किक करते रहेंगे तो आपको पॉपिंग काइंड ऑफ ए साउंड एक आना शुरू हो जाएगी नी में, जिसको हम कहते हैं क्रैकलिंग एंड अ पॉपिंग साउंड इन द नी. सो दिस इज आल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ द मेनिस्के. इनकी जो टियरिंग हो जाती है या रिजिडनेस हो जाती है इनके बीच में, उसके कारण होता है ये सारा. So next we are going to talk about the muscle around the knee. The muscle around the knee help to keep the knee stable, well aligned and moving. There are two main group of the knees muscle which support the knee joint superiorly. The quadricep and the hamstring. Quadricep हो गया जो हमारे थाई के मसल्स होते हैं, hamstring जो हमारे back of the thigh के मसल होते हैं. First of all, quadriceps. Quadra means four. It's a group of four muscle, quadra. It's located in front of the thigh and four-headed. The group contains a separate muscle. इनके नाम क्या होते हैं? Vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius and the rectus femoris. इन चार मसल्स को कंबाइन करें तो quadriceps मसल बनता है. और ये हमारे एंटीरियर थाई का मेन मसल होता है, जिसकी स्ट्रेंथ होने पे ही हम अच्छी तरह से अपने ओपोनेंट को किक कर सकते हैं और हमारी किक में पावर जो आती है वो इसी के कारण आती है. एंड द सेकंड ग्रुप ऑफ द मसल अराउंड द नी इज अ हैमस्ट्रिंग मसल, जो कि आप वेल अवेयर होंगे. इसमें तीन मसल होते हैं, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडिनोसिस एंड द बाइसेप femoris. This group of three muscles on the back of the thigh that provides the opposite motion by bending the knee from the straightened position. Knee को straight करना हो, जिस समय आप बिल्कुल knee को straight करते हैं तो quadricep muscle use होता है. जब आप knee को bend करना हो तो hamstring muscle का रोल आता है. इसी तरह hamstring और quadriceps अगर दोनों strong होंगे तो हमारी leg की movement, kicking, landing, spinning, ये सब हमारी अच्छी होगी. और अगर हमारे ये मसल वीक होंगे तो हम इसमें से किसी भी पार्ट में इंजरी हो सकती है while performing. नेक्स्ट इज इलियोटिबियल बैंड, जो कि हमारे फिमोरल कॉन्डाइल से ऊपर से, फीमर बोन जो थाई की बोन है, ऊपर से लेकर के हमारे पेल्विस के पास से लेकर के बिल्कुल घुटने के पास तक इतना लंबा मसल होता है, इसीलिए इसको कहते हैं इलियोटिबियल बैंड. It's a broad tendinous extension of the tensor fasciae lata and the gluteus maximus that also helps to stabilize the knee. ये लंबा होता है, पूरे हमारे lateral movements जो हैं knee के उनको कंट्रोल करता है. जिस समय हम मुहासी गिरी या स्लैप किक जिस समय हम कर रहे होते हैं, उस समय यही एक मसल होता है जो बार बार हमें स्टेबिलिटी हमारे नी को देता है. और मूवमेंट के टाइम जब हम फोर्स से किसी चीज को हिट करते हैं तो इलियोटिबियल बैंड ही होता है जो हमें सपोर्ट करता है. और मैक्सिमम रेपिटेटिव किक्स करने के कारण समटाइम्स प्लेयर्स को हो जाता है इलियोटिबियल बैंड फ्रिक्शन सिंड्रोम, जो कि बहुत ही कॉमन इंजरी होती है हमारे नी की. मैं आर यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? आपको समझ आ रहा है?
Shall I move on? सर हर कोई म्यूट किया गया है तो Okay. Okay. So next we are going to discuss the bursa. बर्सा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है नी के अंदर में, और एटलीस्ट डिफरेंट साइज के 13 बर्साज होते हैं नी में, जिनके बीच में फ्लूइड होता है. These fluid-filled sac cushions the joint and reduce the friction between the muscle. अब जैसे मैंने आपको कहा कि iliotibial band friction syndrome is the most common injuries among the martial arts or the combat sports or the sports which are related to karate, wushu kind of a thing, जहाँ पे हमें kicking करनी पड़ती है. तो उस iliotibial band friction band के नीचे इसी तरह के छोटे छोटे बर्साज होते हैं जो कि नेचर ने रखे हैं. उनके बीच में थोड़ा फ्लूइड होता है. This is filled with the fluid and it act like a cushion to the joint and reduce the friction between the muscle, bone, tendon and ligament. Bone, ligament, tendon and muscle के बीच में रगड़ friction ना हो, इसीलिए नेचर ने बीच में बरसास रखे हुए हैं जो कि छोटी छोटी थैलियां होती हैं फ्लूइड की, जिनको कि हम कुशन कहते हैं. And these bursts are located underneath the tendon, ligament, lateral and medial side of the knee. For example, patellar bursa is one of the larger bursa of the knee. Prepatellar is the largest bursa of the knee and located in front of the patella. जिसको हम कहते हैं suprapatellar bursa. It protects the patella. Sometimes patella होती है हमारी ये जो बिल्कुल ऊपर वाली गोल टाइप की बोन नी के ऊपर, जो कि हमें इजीली फील होती है जब भी हम नी को बेंड करते हैं या खोलते हैं इस टाइम. Whether due to the direct trauma or even infection, it can become irritated, swollen, inflamed, जिसको हम कहते हैं prepatellar bursitis. किसी भी टाइप का इन्फेक्शन, ओवर यूजेज या इस पे बार बार मसल्स की रगड़ लगने के कारण इन्फेक्शन हो जाना या इसका सूज जाना, स्वेलिंग हो जाना, swollen हो जाना, this causes inflammation to the bursa. This is an alarming sign to the athlete, to the supports, to that particular sports person, that something infective or something overusage is going on, so that patient and athlete can stop doing overusage of that particular part. The doctors can prescribe rest so that we can heal up. This is what the bursa is, and the main role of the bursa is to lubricate the joint, to act as a cushion between the muscle, bone, tendon, and the ligament. Okay. अब नी के अराउंड आर्टरीज भी होती हैं, वेन्स भी होती हैं, नर्व्स भी होती हैं. विदाउट गोइंग इनटू मच डीपर, जो कि आपके लेवल की नहीं होती है, बट मैं ब्रीफली थोड़ा सा इनके बारे में बोलना चाहूंगा कि as the knee has many structures associated with it, there are many problems that can occur around the knee in addition to wear, tear, type, issue of the knee. And in sports injuries, the source of many knee problems, for example, जिनके symptoms हमारे पास होते हैं, for example, pain which is dull. अगर suppose किसी भी sportsman को knee hit करते, kick को land करते, टर्न करते, स्पिनिंग लेते हुए एक डल सी शार्प सी आवाज आए, या मुझे कड़क की आवाज आई कुछ करते समय, या फिर बहुत ही तेज से टीस उठे घुटने में, या कांस्टेंट और या फिर बार बार लगातार उसी पार्ट पे, जैसे आप बार बार एक साइड किक मार रहे हो या फ्रंट थ्रस्ट मार रहे हो, तो आपको एक पर्टिकुलर पार्ट में नी में कोई एक पेन हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं कि इट्स अ डल पेन इन द पर्टिकुलर जॉइंट, फॉर एग्जांपल नी. और उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं हम उसके लिए बात करेंगे. एज there are many structures in the knee that are prone to the injury depending on the underlying problem. The location of the pain can be variable as well. It can be ligament, it can be bone, it can be muscle, it can be bursa, it can be meniscus. Any kind of injury could be there, but we have to see it, examine it, see it, and make our diagnosis, and then find out what type of injury it is exactly. First of all, हमें ये देखना पड़ता है कि swelling हुई है उसके around,
और अगर swelling हुई है तो what type of this is swelling. One of the most common swelling is the most common associated with the knee problem and accumulate too much soluble fluid. उसमें आपका घुटना सूज जाएगा, जो अंदर के बर्साज हैं जिनके अंदर ये फ्लूइड होता है जो हमारे कुशन का रोल प्ले करते हैं, उनमें से वो फ्लूइड बाहर आ जाता है, उसको हम कहते हैं सॉल्युबल फ्लूइड, और वो स्वेलिंग की फॉर्म में आपको दिखता है बाहर से जब भी इंजरी हो जाती है, उसको हम कहते हैं सॉल्युबल इफ्यूजन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द नी. एंड समटाइम्स अगर बहुत ही सीवियर हो जाए, बहुत ही सीवियर, तो उसमें ब्लीडिंग भी हो जाती है और वो ब्लड भी इकट्ठा हो जाता है. तो ये डॉक्टर ही डिस्क्रिमिनेट कर पाता है कि ये फ्लूइड है या ब्लड है. ब्लड हो तो उसको हम हीमोर्थ्रोसिस कहते हैं, फ्लूइड हो तो हम उसको सनेबल इफ्यूजन कहते हैं. और immediately it can also cause the joint to swell, and swelling immediately following an injury, usually bleeding or more delayed swelling, or initial, which is any kind of a trauma can cause any kind of an injury. तो हमें उसी समय एक राइस थेरेपी होती है जिसको हम कहते हैं कि आइस लगाना इमीडिएटली रैपिडली, वो हम उसको यूज करते हैं. ये हो गया एक स्वेलिंग. दूसरा स्वेलिंग होता है क्रॉनिक स्वेलिंग, which starts to limit full range of the motion, कि उसको एक बहुत देर से घुटने में प्लेयर को स्वेलिंग रहती है, वो लेकिन फिर भी अपने एंथुजियाज्म के कारण या रूटीन के कारण अपने आप को स्टॉप नहीं करता, प्ले करता है या रनिंग करता है, तो वो क्रॉनिक स्वेलिंग बन जाती है जो कि उसको पूरा घुटना खोलने नहीं देती है. उसको लॉकिंग सी इस तरह से फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि मेरा पूरा घुटना खुल नहीं रहा, वो भी एक प्रकार की स्वेलिंग होती है. And next we are going to talk about the giving way. Sometimes जिस तरह से हम कोई प्लेयर लैंड करता है किक मारने के बाद, तो उसे लगता है कि मेरा घुटना निकल जाएगा अभी, वो इमीडिएटली कोच को रिपोर्ट करता है कि कोच साहब मैं जैसे ही बैक टर्न साइड किक करता हूँ या राउंड हॉर्स करता हूँ, मुझे जैसे ही लैंड करता हूँ तो मुझे लगता है मेरा घुटना निकल जाता है. उसको हम इंग्लिश में या अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं गिविंग वे काइंड ऑफ ए इंजरी ऑफ द नी जॉइंट. मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा. समटाइम्स इट डिपेंड्स अपॉन द अंडरलाइंग प्रॉब्लम. Your knee may occasionally feel unstable and you may feel like you are momentarily lost control of the muscle of the knee. This may cause you to stumble or even fall. इसके कारण आप कभी कभी गिर भी सकते हैं, बैलेंस प्रॉपर नहीं होगा, लैंडिंग प्रॉपर नहीं होगी, और आपको एक डर लगेगा दिमाग में कि मेरा घुटना निकल जाएगा. और लेकिन ये डिपेंड करता है अंडरलाइंग कोई इंजरी के ऊपर जो कि आपकी रूल आउट नहीं हो रही, जो कि एक्सरे में भी नहीं पकड़ी जा रही, उसके लिए शायद हमें एमआरआई वगैरह करना पड़ता है, लाइक दैट. मैक्सिमम इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स, इन मार्शल आर्ट्स, we listen such kind of things in our knee, which is called snap, crackles and pops. अब ये होते क्या है? We will discuss one by one. पॉपिंग और क्रैकलिंग नॉइस, जैसे आप मल्टीपल किकिंग करते हैं, आज कोच ने आपको ऑर्डर किया है या आपको इंस्ट्रक्ट किया है, यू हैव टू डू 1000 राउंड हाउस किक्स साइमल्टेनियसली. स्टूडेंट्स उसी समय करना शुरू करते हैं और इवनिंग या सेकंड डे या थर्ड डे को एक आवाज सी आना शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं पॉपिंग और क्रैकलिंग नॉइस, व्हिच इज मेडिकल टर्म्स एज क्रेपिटस. हम उसको क्रेपिटस कहते हैं. And it's coming from the knee without any association pain. इसमें कोई दर्द नहीं होती, कुछ swelling नहीं होती, कुछ नहीं होता, बट एक आवाज आती है while movement. उसको हम कहते हैं crackling noise or a popping noise. And the most common cause of this crackling noise is chondromalacia petala, या कुछ इस तरह से ओवर यूजेज, या हमने बहुत बार एक ही चीज बार बार मल्टीपल रेपिटेटिव टाइम अगर हम किकिंग करेंगे तो इस तरह का सुनने को मिल जाता है. और जो हमारे मेनिस्कल होते हैं, जो पढ़ाता आ रहा हूं ऊपर से, मेनिस्कल, मीडियल और लेटरल, दिस कंडीशन रिजल्ट्स इन द रफ सरफेस विद द नी दैट रब ऑन ईच अदर एंड कॉजेस नॉइस, जिसकी रबिंग के कारण ये नॉइस आती है. So gradually we will move on the other parts, that how we can prevent this type of injuries and how we have to
take care about our health while playing the game. Without stopping the game, we have to condition ourselves in such a way so that game should remain continue and there should be no more further enhancement of the injury in our body. Number one, we have a pre-participation physical examination and a clearance evaluation before participating. Suppose आपके पास being a coach, आपके पास कोई एक न्यू स्टूडेंट आता है कि सर मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ, मैं वुशु सीखना चाहता हूँ, तो आप उसकी एक फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए एक डॉक्टर के पास भेजते हैं कि वेदर ही इज फिजिकली फिट और नॉट. जैसे आप टेस्ट करते हैं ये दौड़ सकता है, इसके नॉक नीज तो नहीं है, इसके फ्लैट फुट तो नहीं है, ये फास्ट रनिंग नहीं कर पाएगा, और उसके बाद इसको कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है. इस प्री एग्जामिनेशन वो होनी चाहिए. And when initial selection the martial art, you plan to participate in learning the inherent risk which each style of the martial art before selecting the one of the pursue. हम ये सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं. और while always train and practice your martial art under direct supervision of an experienced coach, teacher, आपका गुरु जो आपको सिखाते हैं, who perform proper warm up and proper cool down. Proper warm-up is very important, and proper cooling down is much more important than the warm-up. Warm-up हमें injury से बचाता है, and cooling down ये हमें next day की routine start करने के लिए हमें prepare करता है, because when we do practice, the lactic acid formation occurs in the muscles from the blood. And once the lactic acid formation starts, the athlete become tired. थक जाता है. हम थकते क्यों हैं? क्योंकि लैक्टिक एसिड ब्लड में एक्यूमुलेट होकर के मसल्स में आ जाता है, मसल टाइट हो जाते हैं और स्पोर्ट्समैन थक जाता है. इसी तरह जब हम कूलिंग डाउन कर रहे होते हैं तो उस समय एक एक पार्ट, एक एक मसल, एक एक लिगामेंट, एक एक जॉइंट की कूलिंग डाउन एक एथलीट दूसरे एथलीट की करेगा ताकि वो ब्लड में वापस चला जाए और मसल्स रिलैक्स हों और नेक्स्ट डे प्रैक्टिस इजी हो. दैट इज द रीजन व्हाई cooling down is much more important than the warming up. If we can't do the warm up, we will be susceptible and prone to catch the injury. अगर हमने वार्म अप नहीं किया हम बहुत जल्दी इंजरी हो जाएगी. लेकिन अगर हमने प्रॉपर्ली कूलिंग डाउन नहीं किया तो नेक्स्ट डे की परफॉर्मेंस हमारी डाउन हो जाएगी, पुअर होगी, हम उतने लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. Similarly, third, we have to wear the appropriate protective equipments in your style, like gloves, mouth guard, headgear, chest protector, padding, bracing, everything, shin guard, everything. Proper size, proper height, अपने फिटनेस के अकॉर्डिंगली हमने ये सारे इक्विपमेंट्स को पहनना है ताकि हमें गेम खेलते समय किसी प्रकार की इंजरी ना हो. Speaking with a sports medicine professional and athletic trainer, if you are concerned about any injury or strategies for your preventing injuries, if you will have any kind of a complaint within the area wherever you are existing, you can talk to your sports injury medicine physician or a doctor regarding the ailment. He can guide you in a way. For example, your technique is right or wrong, your gears are right or wrong, your equipments are right or wrong, your endurance level is correct or not, your anaerobic zone in which you have to work is right or wrong. Accordingly, you will move. Next, we are going to talk about a little bit of the game part and the serious kind of injuries which can occur with this martial art kind of a combat. These are, for example, दो opponent खेल रहे हैं और खेलते खेलते अगर if the another one is not wearing the guards, the groin guard, there could be a groin pull while hitting the testes, while hitting the groin part. Secondly, the hamstring strain.
हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन जो कि 3 मसल से होता है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडनोसिस एंड द बाइसेप फेमोरिस, अगर इसमें आप ओवर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, जैसे सपोज हम अपने एथलीट्स को स्ट्रेचिंग सिखाते हैं, स्ट्रडल खोलना, फ्रंट स्ट्रडल, साइड स्ट्रडल, उस समय स्ट्रडल खोलते खोलते या किक, हाइट की किक करते समय हैमस्ट्रिंग में स्प्रेन आ जाता है, या हम कोई लॉन्ग रेंज का कोई डिस्टेंस का काम कर रहे हो, लॉन्ग रेंज किक कर रहे हो, या हमारी लैंडिंग प्रॉपर ना हो तो हमें हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन आ जाता है, तो उस को हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन। और उस टाइम immediately we have to stop the game, immediately we have to consult the doctor, because hamstring pull या hamstring strain एक बार होता है तो इसके repetitive होने के chances बहुत होते हैं, और दिमाग में एक बार बैठ जाता है कि मुझे hamstring pull या hamstring strain हो गया है, तो आपकी परफॉर्मेंस गेम में, अरीना में पुअर हो जाती है। For that, immediately अगर आपको hamstring strain, hamstring pull हो, तो you have to consult your doctor and you have to follow the advice what your doctor is saying. Rest कह रहा है, आपको सिर्फ आइसिंग के लिए कहा गया है, या आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग के लिए कहा गया है, या फिर आपको किसी मोडेलिटी को यूज, फिजियोथेरेपी मोडेलिटी को यूज करने के लिए एडवाइस करता है डॉक्टर, ताकि आपकी हैमस्ट्रिंग की हीलिंग हो फटाफट और आप गेम में फौरन वापस जाएं। इसी तरह अगर सपोज हमें कोई नी के अराउंड, जिस तरह की टुडे वी आर जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट द नी, एंड नी के अराउंड टियर हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है, वो मेजर इंजरीज में आता है एसीएल टियर। हमारे कई वुशु प्लेयर्स को, मार्शल आर्ट प्लेयर्स को एसीएल टियर, I would not say it's very common, but it's the commonest injury among the martial art player, because हमारी नी की अगर प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग ना हो तो हमें टीयर्स, एसीएल टीयर, पीसीएल टीयर होने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमने एक तो किक को उठाना है हवा में, और दूसरा हमने ओपोनेंट को फोर्सिबली हिट करना है। तो उसमें दो एक्शंस जो हो रहे होते हैं, उसके दौरान हमें भी इंजरी लगने का डर होता है, और अगर हमने हिट कर दिया, हम शिन पे हिट करने जा रहे हैं एक पॉइंट लेने के मोड में, तो हमें थोड़ा सा ऊपर हिट हो गया, उसको नी पे हिट हो गया, तो उसको टियर हो सकता है, उसको लिगामेंट टियर हो सकता है अगर हम फोर्सफुल हिट करें, या वाइल डूइंग प्रैक्टिस ऑल्सो। जैसे सपोज वाइल आप शिन की कंडीशनिंग करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, बार बार स्लैप किक करते हैं, माशिगेरी करते हैं किसी चीज पे, पंचिंग बैग पे, तो उस समय भी हमें कुछ माइक्रो ट्रॉमास हो सकते हैं, कुछ या जोर से कर दी, टियर होने का चांस हो सकता है, तो दैट कॉल्ड, और मोस्टली उसमें होता भी एसीएल टियर ही है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टियर। अगर तो ये इसके टियर के 3 पार्ट्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अगर तो ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक हो, ये नॉन सर्जिकल रिपेयर हो सकता है, और अगर ये कंप्लीट टियर हो जाए तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है। इसी तरह एसीएल, पीसीएल दोनों के चांसेस होते हैं, और हर एक का एक लेवल होता है, लेवल ऑफ इंजरी इज देयर। स्प्रेन, स्ट्रेन, शिन स्प्लिंट, इन चीजों को हम with the help of सपोज आइसिंग से भी कवर कर सकते हैं, कंडीशनिंग से भी कवर कर सकते हैं। सपोज आपको कोई भी आपका प्लेयर या किसी भी कोच के पास कोई भी प्लेयर इस तरह से आता है, मुझे शिन स्प्लिंट हो गया है, उसकी शिन में काफी पेन होना शुरू हो जाती है, तो उसको मैक्सिमली अगर आप डॉक्टर के पास जब लेके जाते हैं तो डॉक्टर उसको एडवाइस करता है आइसिंग करोगे, रेस्ट, आइसिंग, then care and palliative care and the support। उस समय हम उसको सबसे पहले आइसिंग कहते हैं। फर्स्ट 72 आवर्स इज अ क्रायोथेरेपी। आइसिंग करने से जो इन्फ्लेम्ड टिश्यू होता है वो सेटल हो जाता है, एंड द सराउंडिंग मसल्स जो उसको, ग्रुप ऑफ मसल्स जो उसको होल्ड कर रहे होते हैं, उनमें स्वेलिंग कम होती है और परफॉर्मेंस ओके हो जाती है। लेकिन समटाइम्स अगेन आज शाम को आपने रेस्ट किया और आइसिंग की, और सुबह मॉर्निंग फिर से दोबारा आपको गेम खेलनी है, तो उससे ओवर यूजेज रिकरेंस होना शुरू हो जाती है, विच कैन लीड्स टू क्रॉनिक काइंड ऑफ अ पेन,
उस पार्ट में हम कोच से रिक्वेस्ट करते हैं कि पेशेंट को और थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए, ताकि हम इसकी प्रॉपरली जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है और जो वो टिश्यू है, जो पार्ट है जहाँ पे इसको इंजरी हुई है शिन स्प्रिंट के दौरान, उस पार्ट को हम रेस्ट दें, हीलिंग करें, सपोर्ट दें, और फिर उसके बाद इससे प्रैक्टिस दोबारा करवाई जाए। दिस इज अनदर थिंग। सिमिलरली कोई एंकल में स्प्रेन हो जाता है और लिगामेंट में ग्रेड 2, ग्रेड 1, ग्रेड 3 किसी प्रकार का स्प्रेन आ जाता है, तो हम सेम प्रोसेस वहां पे भी फॉलो करेंगे। इंजरी टू एनी काइंड ऑफ लिगामेंट इज द सेम ट्रीटमेंट। पहले रेस्ट दी जाती है, आइस दी जाती है। इमीडिएटली किसी भी प्रकार की इंजरी, सर से पांव तक किसी भी प्रकार की चोट हो, चाहे ब्लड भी आ रहा हो किसी भी प्लेयर को, हमें इमीडिएटली वहां पे आइस लगानी है। आइस लगाने का फंक्शन क्या होता है, उससे उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई होती है, जो माइक्रो वेसल रप्चर हुई होती है, वो उसी समय बंद हो जाती है और ब्लीडिंग होना फर्दर स्टॉप हो जाता है। स्वेलिंग को कंट्रोल किया जाता है आइसिंग से, और एक बहुत बड़ी रिकवरी पार्ट में हम चली जाती है हमारी बॉडी। सो दैट इज द बेस्ट थिंग कि अगर हम इमीडिएटली किसी भी प्लेयर को किसी भी पार्ट में किसी भी समय इंजरी होने पे आइसिंग लगाएं, दिस इज द बेस्ट थिंग। सेकंड थिंग जो कि बड़ी एडवांस स्टेज में हो जाती है कि सपोज गेम खेलते खेलते किसी को वाकई में फ्रैक्चर हो गया लेग में, तो मेरी सभी कोचेस, स्पोर्ट्स पर्सन, टीचर्स, सबको एक एडवाइस है कि अगर आप देख लें नेक डाइस से आपको लगता है कि फ्रैक्चर हो गया, पर्सन कैन नॉट पुट वेट ऑन द लिम्ब एंड कैन नॉट वॉक, कैन नॉट, उसको इमीडिएटली वहीं पे लिटा के उसके साथ कोई स्टिक या कोई सपोर्ट को बांधा जाए। सपोज लेग है, अगर हम बात करते हैं लेग का फ्रैक्चर हो गया या थाई का फ्रैक्चर हो गया, किसी भी पार्ट का, उसको किसी चीज से सपोर्ट दे के बांध दे। बांधने के बाद उसको आप मूव करें किसी दूसरी जगह पे, डॉक्टर के पास, गाड़ी में बिठाना, कुछ भी, बट इमीडिएटली वहीं पे लेटे लेटे उसको किसी सपोर्ट के साथ बांधे, ताकि हम जिस समय उसको मूव करें उसकी मूवमेंट से उस फ्रैक्चर से बाकी जगह पे कोई इंजरी ना हो। दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। दिस इज कॉल्ड प्रिवेंशन। इससे हम बचा सकते हैं फर्दर मोर इंजरीज। और फिर इमीडिएटली आप उसको शिफ्ट करेंगे थ्रू एम्बुलेंस और थ्रू सपोर्ट टू एनी नियर प्राइमरी केयर सेंटर, जहाँ पे डॉक्टर उसका ध्यान रखेंगे, उसकी कंडीशन को देखा जाएगा। सो topics we will discuss, keep on, and Mr. Kuldeep Handu will put me and invite me many a times on these type of lectures. And today we have discussed only knee, one joint. Next, we will discuss shoulder, then elbow, then all the joints of the body. और मैं आपको एक एक करके हर जॉइंट और उसकी टाइप, उसकी एनाटॉमी, उसकी कौन कौन सी इंजरीज हो जाती हैं हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड या अदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उस जॉइंट की इंजरीज क्या हो सकती हैं एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट, और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, I will guide you. For example, in brief, in crux, only within 2 minutes, I can understand there's a time crunch. जैसे सपोज जो मेरी स्पेशलिटी है, अगर कोई भी जॉइंट, कोई भी लिगामेंट, कोई भी टेंडन, कोई भी मसल, मैं नाम लेता हूँ, हैमस्ट्रिंग स्प्रेन टियर हो, एसीएल टियर हो, मेनिस्कल टियर हो, नी में किसी भी प्रकार की कोई भी इंजरी हो, तो आज की लेटेस्ट साइंस जो कि मैं यहाँ पे इस समय जम्मू में कर रहा हूँ, उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट का या स्पोर्ट्समैन जिसको इंजरी हुई होती है, उसको टियर हो गया, ग्रेड 1, 2, 3 टियर हो गया, लिगामेंट फट गया, मसल टियर हो गया, टेंडन टियर हो गया, जॉइंट में बहुत मेनिस्कल टियर हो गया, हम क्या करते हैं, हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं। इट्स अ लेटेस्ट साइंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस थेरेपी इज। वी कॉल इट इन अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंट्राऑर्टिकल शॉट्स ऑफ पीआरपी। पीआरपी होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हाँ, ये प्लेटलेट हमारे ब्लड में होते हैं। हम ब्लड में से उस प्लेटलेट को सेंट्रीफ्यूज करके सेपरेट करते हैं, उसको सिरिंज से ले लेते हैं सेपरेट प्लेटलेट को। फिर उसके बाद जैसे हम
अल्ट्रासाउंड करते हैं नी का, फॉर एग्जांपल मैं नी की बात करता हूँ और एसीएल टीयर हुआ किसी को या किसी भी प्रकार का मेनिस्कल टीयर हुआ है, तो नी का अल्ट्रासाउंड करके वहीं पे उस प्लेटलेट को इंजेक्ट कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली नेचर के हिसाब से ऑटोमेटिकली हीलिंग स्टार्ट हो जाती है वहां पे, क्योंकि आप ही के प्लेटलेट आप ही के नी में जाकर के उस इंजर्ड टिश्यू, लिगामेंट, मसल, जो भी चीज है उसको हील कर देते हैं विद इन 30 डेज, और स्पोर्ट्समैन या कोई भी बंदा वापस अपनी गेम में आ सकता है बिना ऑपरेशन के. So this is a very latest technique which I learned from America, and I'm giving this facility in Jammu. Many of the players and the athletes वो इस टेक्निक को उन्होंने यूज किया है. जूडो के प्लेयर हैं, हमारे मार्शल आर्ट के प्लेयर हैं, वुशु के प्लेयर हैं, और वो with the grace of Almighty they are performing better now, and I've seen good results. So this is the latest science, latest technology. I just wanted to update you guys regarding this thing. So any kind of a question, any kind of a query you have, and if you want to contact me, you can contact Mr. Kuldeep Handu. He can guide you about how to contact me furthermore in Jammu regarding any kind of a sports injury. So over to Mr. Kuldeep Handu, and he will take care, and he'll be sharing the screen now. Kuldeep Handu, are you listening me? Thank you very much, Dr. Saab. It was a wonderful session, sir. You particularly took the knee injury. Basically, it is a main injury for the Wushu athletes. Basically, 90% जो हमारे players हैं वो इंजरी के कारण में ही बेचारे परेशान हो जाते हैं. आपने बता दिया थोड़ा सा उसके बारे में, आपने ब्रीफ किया बच्चों को कि हम उसको कैसे बचाएं और कैसे हम उसको कैसे कैसे वेज है उसको क्योर करें सर. और आपने जो भी नई थेरेपी बता दी, दैट विल बी वेरी इफेक्टिव इन फ्यूचर आल्सो सर. तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम सर. और होप करता हूँ कि सारे प्लेयर ने एंजॉय किया होगा और उसको पूरा थॉरली इसको रीड भी किया होगा, सीखा भी होगा, क्योंकि इंजरीज हमारी पार्ट ऑफ गेम है. इंजरी तो होती रहती है, जब तक हमारी इंजरी नहीं अगर नहीं होगी तो हम आगे बढ़ेंगे में नहीं. Exactly. तो डॉक्टर साहब से हम आगे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें भी आगे थोड़ा सा ब्रीफ, जैसे आपने बताया शोल्डर के बारे में बहुत सारी इंजरीज होती हैं, वो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे. तो आप काइंडली उस टाइम सर अपना कीमती वक्त हमारे साथ स्पेयर कीजिए सर. थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू वेरी मच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म. जहाँ ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है तो वुशु के एथलीट्स को पूरा बेखूबी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और आज आपने सेलिब्रेशन दी रिगार्डिंग इंजरी सर. थैंक यू वेरी मच सर. ओवर टू प्रेम सर. Welcome. Thank you very much. Thank you once again, sir. That was a very nice session. Thank you for your valuable time giving to our Indian Wushu athletes, giving so much scientific knowledge regarding the sports injuries and all the Wushu related injuries and many ways to avoid them. This is a great pleasure from Sports Authority of India and from the side of Wushu Astronom India. I would like to thank you once again. And thank you once again. I would like to thank our chief coach, our respected chief coach, Sri Kuldeep Handuji. Through his direction, we are able to host the session successfully. Thank you so much, sir. And tomorrow there will be both Chanda and Taulu sessions. So I request all the players and coaches across the country to be present in time. Surely आज तो बहुत बढ़िया सेशन रहा डॉक्टर साहब का, और स्पोर्ट्स का वुशु का रिलेटेड बहुत इंजरीज के बारे में बता दिया गया. तो आज प्रैक्टिस रेस रहा और हमने स्पोर्ट्स इंजरी का रिगार्डिंग हमने ज्ञान लिया है. तो कल जोरदार प्रैक्टिस होंगे, तो ज़रूर टाइम पर आप लोग आ जाइए और अच्छा प्रैक्टिस करते हैं. और once again I thank you so much sir for your kind contribution and very very valuable session. And I also thanks each and everyone across the country joining e-Pathshala Wushu. Thank you all once again. कल फिर मिलते हैं. जय हिंद. Thank you. जय भारत. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Kuldeep Handu. Thank you very much. Much sir. Thank you.
Bye bye, sir. Thank you. Thank you, Kuldeep. Bye-bye.